پچھلے حصے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ فیروز کو کس طرح اس کے باپ نے اپنے کارندے بشیرے کے ساتھ کنجھا جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ فیروز آس پاس کے گاؤں دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیکھنا تو بس ایک بہانہ تھا۔ دراصل فیروز کنجھا میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آگے کیا حالات پیش آئے، سارے حالات دیکھیے کہانی دھواں کی اس کڑی یعنی چوتھے حصے میں۔ پیش خدمت ہے کہانی دھواں کا چوتھا حصہ۔ بشیرے کے آنے سے پہلے میں ناشتہ کر چکا تھا۔ میں صبح جلدی منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو چکا تھا۔ امی مجھ سے پہلے جاگ چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی میں بشیرے کا انتظار کر رہا تھا۔ گزشتہ رات بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میں کنجھا کیوں جا رہا ہوں۔ یہی سوال دہرایا گیا، مگر میں کیا جواب دیتا؟ اصلی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ جمیلہ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں صرف وہاں سیر و تفریح کی غرض سے جا رہا ہوں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ جھوٹی بات بہرحال جھوٹی ہوتی ہے، اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا اور اس میں اثر نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے جمیلہ سے جھوٹ بولا تھا، مگر معاملہ ہی ایسا تھا کسی کو بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ بشیرے کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ابو نے بشیرے کو ایک بار پھر شام تک لوٹ آنے کی تاکید کی۔ سائیکل چلانا مجھے بھی آتا تھا، اس لیے کنجا پہنچنے تک بشیرے کے انکار کرنے کے باوجود تقریباً آدھا راستہ میں نے سائیکل چلائی۔ اپنے دشمن کی تلاش کے سلسلے میں پہلے ہی میں نے بشیرے کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہاں تک پہنچتے میرا ارادہ بدل گیا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی۔ تقاضا احتیاط کا یہی تھا کہ میں بشیرے کو کچھ نہ بتاتا۔ بشیرے کا داماد کرمو کھیتوں پر کام کرنے گیا تھا۔ کرمو کے بوڑھے باپ کی بشیرے اور میری بڑی پذیرائی کی، پھر اس نے کسی بچے کو کھیتوں کی طرف دوڑایا کہ وہ کرمو کو بلا لائے۔ میرا داماد بڑے ملک جی کا مزارع ہے، بشیرے نے فخری انداز میں بتایا۔ تمہاری مراد یہاں کے بڑے زمیندار ملک خوشی محمد سے ہے نا؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ ہاں جی، انہی سے، بشیرہ جواباً بولا۔ یہ کہہ کر بشیرہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا اپنی نواسی کو دیکھا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ قدرت کیسے میرے راستے ہموار کر رہی تھی۔ کرمو اپنے دشمن کا حلیہ بتا کر آسانی سے اسے سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا بھی تھا، حالانکہ اس وقت میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کرمو ملک خوشی محمد ہی کے کھیتوں پر کام کرتا ہوگا۔ کرمو کو کھیتوں سے آنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ 17-18 سال کا نوجوان تھا، اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ وہ آتے ہی گھر میں چلا گیا۔ میں اس کے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بشیرے اور کرمو گھر سے نکلے۔ کرمو کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، معاف کرنا باؤ جی، ہاتھ دھلوانے میں دیر ہو گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں مسکرا کر کہنے لگا، اور پھر منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرمو سے میں نے منع بھی کیا کہ خود منہ ہاتھ دھو لوں گا، مگر وہ نہ مانا۔ وہ پانی ڈالتا رہا اور میں منہ دھونے لگا۔ میں نے اس دوران میں کرمو سے مطلب کی بات کر لی۔ میں تمہارے گاؤں میں گھومنا چلوں گا کرمو۔ جی باؤ جی، میں چھٹی لے کر آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ علی پور سے فاطمہ کا باپ آیا ہے، کرمو نے جواب دیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ پھر لسی کا ایک دور چلا۔ مجھے ایک پل بھاری لگ رہا تھا کہ کب میرے ساتھ وہ چلے، میں اور اس سے ضروری معلومات حاصل کروں۔ جا بھائی کرمو بیٹے، باؤ جی کو گاؤں کی سیر کرا لا، اور سن، اپنے ملک صاحب کے باغ ضرور دکھانا ان کو، بشیرے نے اپنے داماد سے کہا۔ کرمو فوراً میرے ساتھ چلنے کو راضی ہو گیا۔ کنجا علی پور سے بھی بڑا گاؤں تھا، وہاں زیادہ تر مکانات کچے ہی تھے۔ کرمو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی، مگر یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے۔ اپنے سسر کو بھی تم اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ نہیں بتاؤں گا باؤ جی، ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ کرمو نے تیزی سے گردن ہلائی۔ اب بولو بات کیا ہے؟ میں نے کرمو کو اپنے دشمن کا حلیہ بتایا، پھر بولا، میں نے سنا ہے کہ اس حلیے کا ایک آدمی ملک خوشی محمد کا کرندہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ بات صحیح نہیں، اس حلیے کا تو کوئی ملک صاحب کا کرندہ نہیں۔ اس حلیے کے ایک آدمی کو میں نے ملک جی کے ڈرائیور کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے، وہ کسی اور گاؤں کا ہے جی، یہاں سے 6-7 کوس پر ایک اور گاؤں ہے، وہ شاید وہیں کا ہے، کرمو نے بتایا۔ تمہیں تو معلوم ہوگا نا اس کا، میں نے ناامیدی کے زیر اثر بجھی آواز میں کہا۔ نہ جی نہ، مجھے نہیں معلوم اس کا۔ تم مجھے ملک جی کے ڈرائیور سے ملوا سکتے ہو؟ مجھے ایک اور راہ نظر آئی۔ وہ تو جی لاہور کے کسی ہسپتال میں زخمی پڑا ہے، کرمو نے کہا۔ کیا مطلب؟ ارے جی، پچھلے ہفتے ملک جی نے اسے کسی کام سے لاہور بھیجا تھا، وہ تبھی سے گاؤں نہیں لوٹا۔ سنا ہے اس کی جیپ کی کسی ٹرک سے ٹکر ہو گئی، بڑی چوٹیں آئی ہیں اسے۔ مولا داد تو جی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بچنا ہی مشکل ہے۔ مولا داد اس کے چاچے کا بیٹا ہے۔ پھر کرمو نہ جانے اور کیا کیا کہتا رہا، مگر میں اس کی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ شاید حادثے پر افسوس کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ملک خوشی محمد کے ڈرائیور سے ملنا بہت ضروری ہے،
चाहे मुझे उसके लिए लाहौर ही क्यों ना जाना पड़े। उसके जरिए मुझे अपने दुश्मन का सुराग मिल सकता था। यही सोचकर मैंने करमू से ड्राइवर का नाम पूछा। करमू ने उसका नाम अल्लाह दिता बताया। वैसे तो मुझे यकीन था कि अल्लाह दिता को लाहौर के मियो हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए, फिर भी मैंने करमू से पूछ लिया, करमू तुम्हें मालूम है कि अल्लाह दिता वहाँ लाहौर किस अस्पताल में है? मुझे तो नहीं मालूम जी, पर मौला दाऊद को ज़रूर मालूम होगा। आप कहो तो मैं उससे पूछ लूँ। वो लाहौर गया था अल्लाह दिता को देखने। हमें शाम तक वापस अलीपुर जाना है, इसलिए तुम मौला दाद से अभी क्यों नहीं पूछ ले? मैंने कहा। अरे जी मौला दाद को छोड़ें बाबूजी, मैं अभी अल्लाह दिता के घर से पता कर लेता हूँ, उसका बाप घर पर ही होगा, आए जी। फिर मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। अल्लाह दिता के साथ हादसे के वक्त उसका दोस्त भी था, वो भी उसके अस्पताल में दाखिल था। उसकी टांग टूट गई थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह दिता के साथ मेरा दुश्मन ही ना हो। अगर वाकई मेरा ख्याल दुरुस्त था तो अल्लाह दिता का चाचाजाद मौला दाद उसकी तस्दीक कर सकता था। इस ख्याल ने मेरे जिस्म में बरकी रो दौड़ा दी। करमू से पूछने पर मालूम हुआ कि मौला दाद इस वक्त खेतों पर होगा। फिर मेरे कहने पर करमू मुझे खेतों में ले गया। मैंने भी ये सोचा मुमकिन है मौला दाद भी मेरे दुश्मन को जानता हो। मौला दाद ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे जज्बात में हिजान पैदा हुआ। मेरा ख्याल दुरुस्त था, अल्लाह दिता के साथ जख्मी होने वाला मेरा दुश्मन था। मौला दाद ने उसका हुलिया सुनकर उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन मेरे दुश्मन के बारे में उसके नाम से ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, और ये भी कि वो उसे अस्पताल ही में मालूम हुआ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अकबर, खेतों से लौटते हुए मैं पहली बार बुड़बुड़ाया। पहली बार मुझे अपने दुश्मन का नाम मालूम हुआ था। करमू समझा मैंने उससे कुछ कहा है, मगर मैं उसे टाल गया। मैं तो अब जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना चाहता था। मुझे अब कुंजा में एक एक लम्हा गुजारना भारी हो रहा था। खुदा खुदा करके शाम हुई और मैं बशीरे के साथ अलीपुर की तरफ रवाना हुआ। मुझे जितनी जल्दी थी बशीरे कमबख्त ने उतनी ही देर कर दी। दोनों को शाम तक अलीपुर वापस पहुंचना था, मगर वो शाम को वहां से चला। बेटी ने खाना खाकर जाने की जिद की थी और खाने के इंतजार में बशीरा कुछ देर रुक गया। नतीजतन हम उस वक्त अलीपुर पहुंचे जब गांव में इशा की अजान हो रही थी। तवक्को के मुताबिक अब्बू और अम्मी दोनों ही गुस्से में थे। अब्बू ने इस पर बशीरे को डांट भी पिलाई और वो दांत निकाल कर रह गया। जमीला ने जुबान से अपनी फिक्रमंदी का इजहार तो नहीं किया, मगर उसका चेहरा उसके जज्बात की अक्कासी कर रहा था। यकीनन उसे भी मेरे देर से लौटने पर फिक्र थी। उसी रात मैंने अब्बू से लाहौर जाने को कह दिया। मगर तुम क्यों लाहौर जाना चाहते हो फेरोज बेटा? अब्बू ने पूछा। यह सवाल मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं था, इसलिए मैंने फौरन कहा, अब्बू लाहौर बहुत याद आ रहा है। कमाल है भाई, अभी हमें वहां से आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्या यहाँ तुम्हारा जी नहीं लग रहा? आज ही तो तुम कुंजा घूम कर आए हो और अब लाहौर जाने को कह रहे हो आने दें, अम्मी मेरी हिमायत में बोली। ये उम्र ही घूमने फिरने की होती है, काले सर वाली पल्ले बंध गई तो फिर सब घूमना फिरना भुला देगा। मगर ये भी तो सोचो ना कि मलिक साहब क्या कहेंगे। 2 दिन पढ़ाकर छुट्टियां शुरू कर दी, अब्बू ने कहा। उनसे मैं कल ही सुबह इजाज़त ले लूँगा अब्बू, उनकी फिक्र ना करें, मैं जल्दी से बोला। तुम जानो भाई, वैसे जाना कब है? कल ही चला जाऊँगा नाहिद को पढ़ाकर, और इंशाल्लाह परसों दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। परसों मैं नाहिद को शाम के वक्त पढ़ाने चला जाऊँगा ताकि नागा ना हो, मैंने जवाब दिया। और वहाँ ठहरोगे कहाँ तुम? अब्बू ने दरियाफ्त किया। कई दोस्त हैं मेरे, कहीं भी किसी के पास ठहर जाऊँगा, एक ही रात की बात है अब्बू। अब्बू को तो खैर मैंने मुतमईन कर दिया, मगर जमीला मेरे लिए ज़रूर एक मसला थी। एक बार फिर मुझे वही मसला दरपेश था, झूठ बोलने का मरहला। दूसरे ही दिन सुबह उसने मेरी खबर ले ली। फेरोज तुम्हें आखिर हो क्या गया है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रहे हो? बोलो। ऐसी कोई बात नहीं जमीला, मैं जिद छोड़कर बोला। मैंने आज तक कोई बात छुपाई है तुमसे, मगर अब तुम ज़रूर छुपाने लगे हो। ठीक है ना बताओ, मैं भी अब नहीं बोलूँगी। उसने मुँह फुला लिया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे राज़ी किया और उस चक्कर में मुझे बड़ी हवेली जाने में देर हो गई। नाहिद मेरे इंतज़ार में बैठी थी। वो मुझे देखते ही बोली, कल आप नहीं आए तो मुझे अजीब लगा, बिल्कुल यही महसूस हुआ जैसे दिन ही न निकला हो। नाहिद ने कुछ ऐसे भूलपन से अपने जज्बात का इजहार किया कि मैं उसकी सूरत देखता रह गया। उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी। कल भी मैं नहीं आ सकूंगा, लाहौर जाना है, मैंने बताया। कहो तो मलक जी से इजाज़त ले लूँ? आप बेहतर समझ सकते हैं, मगर लाहौर क्यों जा रहे हैं और वापसी कब हो गई? नाहिद का चेहरा उतर गया। कल ही वापस आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। मैं तुम्हें शाम को आकर पढ़ा जाऊंगा। मैंने दानिस्ता अब उसे कभी कभार तुमसे मुखातिब करना शुरू कर दिया। पढ़ाई की तो मुझे कोई ऐसी ज़्यादा फिक्र नहीं, लेकिन वो कुछ कहते रुक सी गई। फिर बोली, अगर कल शाम को आएंगे तो फिर मैं इंतज़ार कर लूँगी। उस रोज़ पहली बार मुझे ख़तरे की घंटी बजती महसूस हुई। कहीं नाहिद मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। मैंने सोचा, पढ़ाई की फ़िक्र ना होने के बावजूद मैं इंतज़ार का और क्या मतलब हो सकता था। फिर मेरे आते ही उसने जो बात कही भी थी वो उसी तरफ इशारा कर रही थी। वो एक मासूम सी भोली भाली लड़की थी, मैं उसे धोखे में नहीं रख सकता था।
मैंने फैसला कर लिया कि कोई मुनासिब मौका देकर उसे बता दूंगा कि मेरे दिल पर पहले ही किसी और का कब्जा है। नाहिद के इमा पर मैंने कल सुबह के बजाय शाम को आने के मुतालिक मलिक सरफराज से कुछ न कहा और वहां से लौट आया। दोस्तों, आपको कहानी यकीनन अच्छी लग रही है। कहानी के बीच में आपको रोकने की माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाने के एवज हम आपसे सिर्फ इतनी फेवर चाहते हैं कि कहानी ऑनलाइन देखिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घर पहुंचा तो शहनाज मेरी मुंतजिर थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम कब तक नहीं आते, मगर तुम वाकई बड़े कठोर निकले। मैंने सोचा चलो मैं ही छोटी बन जाती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। भाई अफजल से भी मैंने वादा ले लिया है, वो तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। मगर मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, मैंने उसे बताया। तो फिर चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहुत दिन हो गए मुझे भी लाहौर गए। वो मेरे साथ लाहौर चलने पर राजी हो गई। मेरा साथ होगा तो तुम्हें वहाँ रहने की भी परेशानी नहीं होगी। हमारी एक कोठी भी वहाँ है गुलबर्ग में, शहनाज कहने लगी। लेकिन मैं वहाँ तफरी के लिए नहीं जा रहा, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कल ही वापस लौट आऊँगा। मैं बोला, तो क्या हुआ, मैं भी कल ही तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगी। यहाँ से अपनी जीप में चलेंगे, बस 3 घंटे का सफ़र है। यूँ भी बहुत दिन से मेरा जी लॉन्ग ड्राइव को चाह रहा है। तुम अपना काम करके कोठी लौट आना, इतने में मैं शॉपिंग कर लूँगी। फिर हम दोनों रात का खाना किसी अच्छे से होटल में खाएंगे। प्लीज़ फ़िरोज़ मान जाओ ना। शहनाज ने इतना इसरार किया कि मैं इनकार न कर सका और जल्दी कपड़े बदल कर तैयार हो गया। रात को पहनकर सोने और कल बदलने के लिए 2 जोड़े नीज़ दीगर ज़रूरी सामान मैंने एक एयर बैग में पहले ही रख लिया था। मैं जाने के लिए तैयार हो गया तो जमीला ने मुझे इशारा किया। मैं उसके साथ कमरे में चला गया तो वो एकदम मुझ पर बरस पड़ी। इस हिराफा के साथ तुम्हारा लाहौर जाना मुझे पसंद नहीं, मना कर दो इसे कि तुम लाहौर नहीं जा रहे। जमीला ने फैसला सुना दिया। अब तो मैं उसके साथ जाने पर आमादगी जाहिर कर चुका हूँ, मना किस तरह कर दूँ। तुम मुतमईन रहो, मैं उसके साथ हरगिज़ घूमूं फिरूंगा नहीं। मैंने जमीला को समझाया। रात को तो रहोगे ना उसके साथ कोठी में। जमीला बुरा सा मुंह बनाकर बोली, खुदा गारत करे उसे, मालूम नहीं ऐन वक्त पर कहाँ से आ टपकी। बहरहाल मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगी। हद करती हो तुम भी। अरे मैं भी कोई लड़की हूँ जो। मैं रवादारी में एक नाजेबाल बात कहते कहते रुक गया। सुनो, मैं अकेला घूमूंगा और अगर तुम भी चाहती हो कि रात को उसके कोठी में ना सोऊं तो ये भी हो जाएगा। मैं उससे कह दूंगा कि मेरे कुछ दोस्त बज़िद हैं कि मैं उनके साथ रहूं, फिर सुबह मैं उसकी कोठी पहुंच जाऊंगा। सच कह रहे हो तुम? इधर मेरी तरफ देखो और वादा करो कि इसकी कोठी में रात नहीं गुजारोगे। जमीला ने यह कहते हुए मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसी वक्त बाहर से शहनाज की आवाज़ सुनाई दी, अब चलो ना फ़िरोज़, अब घर चलकर मुझे भी तैयार होना है। बाकी बड़ी ही कुत्ती औरत है ये भी। जमीला गुस्से में बुड़बुड़ाई। मैंने चलते चलते उससे वादा कर लिया कि लाहौर में शहनाज की कोठी के बजाय अपने किसी दोस्त के घर सो जाऊंगा। फिर मैं एयर बैग उठाकर कमरे से निकल गया। अम्मी सुबह ही मुझे खर्चे के लिए खासी रकम दे चुकी थी। शहनाज वहाँ मुझे अपने घर ले गई। चौधरी अफजल घर पर ही था। मुझे देखकर उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मुझसे तो वो कुछ नहीं बोला, हाँ अपनी बहन को ज़रूर छेड़ा। मुबारका, आखिर कितने में गल मुकी? पर तुमने तो बीए किया है, क्या दोबारा इम्तिहान में बैठने का इरादा है ट्यूशन पढ़कर? मैं चौधरी अफजल से कोई बात कहने ही वाला था कि शहनाज दरमियान में बोल उठी, देखो अफजल, अब कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। फ़िरोज़ से मेरी दोस्ती हो गई है आज ही, बल्कि इसी वक्त इसके साथ लाहौर जा रही हूँ। उसके लहजे में खुद सरी थी, लगता ही नहीं था कि वो अपने भाई से मुखातिब है। ड्राइवर को भी साथ ले जाना, चौधरी अफजल ने कहा। नहीं भाई, मैं खुद जीप ड्राइव कर सकती हूँ। शहनाज ने अपने भाई के मशवरे को रद्द कर दिया। तुम जानो, मैं तो ख़राब रास्ते की वजह से कह रहा था, चौधरी अफजल ने कहा। आओ डियर फ़िरोज़। शहनाज ने मेरा हाथ थाम लिया, फिर वो मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले आई। उसने तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। मैं इस दौरान मसहरी के करीब बिछी कुर्सी पर उस रसाले की वरक गर्दानी करता रहा जो शहनाज ने मुझे थमा दिया था, और ख़ुद बाथरूम में घुस गई। रसाला अंग्रेज़ी था। जब वो बाथरूम से निकल कर आई तो उसे पेंट पहनते हुए देखकर हैरत हुई। तुम तो कह रही थी कि गाँव में इस लिबास को पहनकर। अरे यार, बस यूं ही दिन गुजर जाएंगे, कौन देखेगा चलती धूल उड़ाती जीप में कि मैंने क्या पहन रखा है। वो मेरी बात काट कर बेतकल्लफी से बोली। बाथरूम जाने से पहले उसने एक एयर बैग में अपने कपड़े और ज़रूरी अशिया रख लीं। उसके बाल शानों पर बिखरे थे। अब एक शाने पर उसने एयर बैग लटका लिया। अपने हुलिये और रंग में वो कोई गैर मुल्की टूरिस्ट मालूम हो रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, पर उसका जहन खूबसूरत नहीं था। कुछ ही देर बाद मैं उसके साथ जीप की अगली नशिस्त पर बैठा हुआ दहशत का शिकार हो रहा था। वो किसी तूफानी बगोले की तरह जीप चलाती हुई गांव को पीछे छोड़कर पुख्ता सड़क तक पहुंच गई। जरा देर को तो मैं चुप रहा, फिर मजबूरन बोलना पड़ा। शहनाज, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी तेज ड्राइविंग ना करो। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो हंसते हुए बोली। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी बुरी ड्राइविंग करती हो तो मैं तुम्हारे साथ सफ़र करने पर तैयार ना होता।
मुझे सेंसेशन में मजा आता है, लेकिन तुम कहते हो तो सिर्फ खातिर जीप को गधा गाड़ी बनाने पर राजी हूँ। ये कहकर उसने रफ्तार कम कर दी। शुक्रिया, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तो कुछ देर पहले यूं लग रहा था जैसे किसी जंबो जेट में सफर कर रहा हूँ। रहने भी दो यार, बस देख लिया तुम्हें, तुम्हारे सीने में किसी चिड़िया का दिल है। वो जोर से हंसकर बोली। मैं तुम्हारे चेहरे को देख रही थी, उस वक्त फाख्ता उड़ी हुई थी तुम्हारी। जिस्म के चीथड़े उड़ने से ये कहीं बेहतर है कि आदमी की फाख्ता उड़ जाए। मैं भी ये कहकर हंसने लगा। फिर उससे पूछा, लाहौर वाली कोठी क्या खाली पड़ी रहती है? नहीं, शहनाज ने बताया, वहाँ 2 एक नौकर और एक हमारी फर्म का मैनेजर रहता है। फर्म? किस चीज़ की फर्म है? मैं हैरत से बोला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा कारोबार है। इस कारोबार को हमारा मैनेजर लुक आफ्टर करता है, जो हमारा अजीज़ है। अफजल को उस पर भरोसा है, मगर मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बहुत रोड़ा ज़रूर लगाता होगा। आखिर बुढ़ा घाक आदमी है। मैंने अफजल से ये भी कहा था, मगर वो बोला कि अगर थोड़ा बहुत खा पी लेता है तो कोई हर्ज नहीं, मेहनत भी तो करता है। हम तो बस 2-1 महीने में कभी कभार ही चेक्स और ज़रूरी कागजात पर दस्तखत करने के लिए जाते हैं। तुम्हें खबर है कि लाहौर वाली कोठी और ये फर्म किसके नाम है? जाहिर है मुझे कैसे खबर हो सकती है, मैंने कहा। कोठी और फर्म मेरे नाम है। उसका लहजा ऐसा था जैसे मुझ पर अपनी अमीरी का रोब डालना चाहती हो। फिर उसने मजीद कहा, इसके अलावा गांव की ज़मीनों में भी मेरा हिस्सा है। फिर तो तुम बड़ी अमीर कबीर खातून हुई। मेरे लहजे में हल्की सी चुभन थी, मगर शायद उसने ये चुभन महसूस नहीं की। मगर क्या फ़ायदा ऐसे अमीर कबीर होने का, हमारी परवाह कौन करता है? लोग तो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते। वो बड़ी हसरत से बोली। उसका इशारा वाज़े तौर पर मेरी तरफ था, लेकिन मैं खामोश रहा। अब उसमें किसी किस्म के शको शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि शहनाज मुझे पसंद करने लगी थी। तुम्हें मालूम है फ़िरोज़ कि मैं ज़बरदस्ती क्यों तुम्हारे साथ आई हूँ? वो सवाल करके चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, मुझे तुमसे अकेले में एक ज़रूरी बात करना थी। अकेले में? वो अकेले में मुझसे ज़रूरी कोई बात करना चाहती है, ये सुनकर मैं चौंक उठा, मगर खामोशी को गनीमत समझा। तुम पूछोगे नहीं कि वो क्या ज़रूरी बात है? मुझे खामोश देखकर उसने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। बिलाखिर मुझे बोलना पड़ा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये कहते हुए उसने अपना बायां हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ शहनाज, ये मुमकिन नहीं। मैंने रुक रुक कर अपनी दिल की बात कह दी ताकि मेरा ख्याल वो अपने दिल से निकाल दे। तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं? उसका लहजा बदलने लगा। मैंने वजह बता दी है, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरी मोहब्बत ठुकरा कर तुमने मेरी तौहीन की है, और फ़िरोज़ अपनी तौहीन मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। उसके लहजे में सख्ती आ गई। मुझे नहीं जानते तुम फ़िरोज़ मेरी मोहब्बत को, वरना तुम ठुकराने की हिम्मत ना करते। मेरी बात याद रखना, जो चीज़ मुझे सीधी तरह से नहीं मिलती मैं उसे छीन लेती हूँ। मैंने ये सोच कर कि शायद वो मेरी मोहब्बत के आड़े ना आए, उसे जमीला के बारे में बता दिया और मजीद कहा, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मैं उससे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। और मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकती फ़िरोज़ कि तुम मेरे बजाय किसी और के हो जाओ। मैं किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मोहब्बत को नफ़रत में बदलने की कोशिश मत करो फ़िरोज़। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अब भी वक्त है फ़िरोज़। उसकी आवाज़ में धमकी थी। मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देती हूँ। लाहौर से वापसी में तुम्हें अपना फ़ैसला सुनाना पड़ेगा। मेरी मोहब्बत चाहिए या नफ़रत? फ़ैसला सोच समझ कर करना फ़िरोज़। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फ़ैसले की वजह से सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं सोचने लगा कि ख्वामख़्वाह इसके साथ आया, मगर फिर ये बात जहन में आई कि अगर ना आता तो भी वो कोई ना कोई मौका निकाल लेती। इस गुफ्तगू के बाद उसने सारे रास्ते मुझसे कोई बात ना की। जीप जब लाहौर शहर की हदूद में दाखिल हुई तो मैंने उससे मुखातिब किया, मुझे अपनी कोठी वगैरह का नंबर वगैरह बता दो, मैं अपने काम से फारिग होकर वहाँ आ जाऊँगा। तुम्हें जाना कहाँ है? उसने सपाट सी आवाज़ में मालूम किया। मुझे मेयो हॉस्पिटल जाना है, मैंने बताया। वहाँ मुझे एक शख्स की इयादत करनी है। अगर तुम्हें वहाँ ज़्यादा देर न लगे तो मैं बाहर जीप में तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। वो मेरी तरफ देख के बगैर कहने लगी, कुछ खबर नहीं मुझे वहाँ कितनी देर लग जाए। मैं बोला, बेहतर है कि तुम चली जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें मेयो हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ, तुम कोठी आ जाना। उसने कोठी का नंबर और एड्रेस मुझे समझा दिया। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, मैंने सर हिलाकर कहा। शहनाज ने जीप को मेयो हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया, फिर कुछ ही देर बाद वहाँ छोड़कर चली गई। शहनाज की बातों से मेरा जहन उलझन का शिकार था, लेकिन मेयो हॉस्पिटल पहुँचते ही जैसे वो सारी बातें भूल गया। अब मैं सिर्फ अपने दुश्मन का ख्याल था मेरे जहन में। कुंजा में मौलादाद से मुझे मलक खुशी मोहम्मद ड्राइवर अल्लाह दिता के बारे में सब कुछ मालूम हो गया कि किस वार्ड में और उसका बेड नंबर क्या है। मौलादाद ने मेरे दुश्मन के मुतालिक बताया था कि वो अल्लाह दिता के बराबर वाले बेड पर है। धड़कते दिल के साथ मैं मतलूबा वार्ड में पहुंचा और फिर उस बेड नंबर पर पहुंचा जिस पर अल्लाह दिता को होना चाहिए था, मगर बेड खाली था।
اس کے بعد والے بیڈ پر اپنے دشمن اکبر کے بجائے مجھے ایک ادھیڑ عمر عورت لیٹی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں کسی اور وارڈ میں تو نہیں آ گیا۔ اس وقت سامنے سے ایک نرس آتی دکھائی دی۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ سسٹر، میں نے نرس کو مخاطب کیا، یہاں اس بیڈ پر حادثے کا ایک مریض اللہ دیتا اور برابر والے بیڈ پر اس کا دوست اکبر تھا، وہ دونوں تم ان دونوں سے ملنے آئے تھے یا کسی ایک سے؟ نرس نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ تمہارا عزیز تھا؟ نرس نے میری بات کا جواب دینے سے پہلے مزید پوچھا، جو میرے لیے خلاف توقع بات تھی۔ عزیز تو نہیں، ہاں وہ دوست تھا میرا، میں نے نرس کو بتایا۔ ویری سوری مسٹر، اللہ دیتا گزشتہ رات انتقال کر گیا۔ آج ہی صبح اس کے عزیز اس کی لاش یہاں سے لے گئے۔ یہ کہہ کر نرس آگے بڑھنے لگی۔ اب میں سمجھا کہ وہ مجھ سے اتنی پوچھ گچھ کیوں کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو میں بھی اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ اور سسٹر، وہ دوسرا مریض اکبر، کیا وہ بھی؟ نرس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ زندہ ہے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا، اسے تو کل صبح ہی چھٹی مل گئی تھی۔ نرس کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ منزل میرے قریب آ کر دور ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کاش اللہ دیتا ہی زندہ بچ جاتا، میں اسے اپنے دشمن کے بارے میں پوچھ سکتا۔ میری لاہور آمد قطعی بے سود ہوئی۔ دوستو، آپ کو کہانی یقیناً اچھی لگ رہی ہے۔ کہانی کے بیچ میں آپ کو روکنے کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک حیدر وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ میں نے ایک بار پھر تاریکی میں تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ہسپتال کے گیٹ سے نکلتے ہوئے مجھے کرموں کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ ممکن ہے جس شخص کی مجھے تلاش ہے وہ ایک اور قریبی گاؤں ڈب گری کا رہنے والا ہو۔ میں انہی خطوط پر سوچنے لگا۔ سوچتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا دشمن یقیناً آس پاس کے گاؤں میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے دشمن کی تلاش میں آس پاس کے سارے گاؤں چھان ماروں گا، مجھے وہ کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا۔ اس فیصلے سے میرے دل کو سکون ملا۔ ہسپتال سے نکل کر میں یوں ہی پیدل ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا کہ کل تک لاہور میں رہوں یا نہ۔ اب مزید رکنا نہ حاصل تھا، پھر بھی مجھے یہی بہتر معلوم ہوا کہ آج ہی علی پور واپس چلا جاؤں۔ ابھی وقت تھا اور میں شام ہوتے ہوئے علی پور پہنچ سکتا تھا۔ اس خیال کا سبب جمیلہ بھی تھی۔ وہ مطمئن ہو جاتی کہ میں شہناز کے ساتھ اس کی کوٹھی میں رات کو نہیں رہا۔ اخلاقاً مجھے شہناز کو اپنی واپسی کی اطلاع دینی چاہیے تھی، اس لیے میں نے گلبرگ کے لیے ایک رکشہ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر مطلوبہ کوٹھی تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ رکشہ کا کرایہ ادا کر کے میں کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک گیٹ کھلا اور ایک جیپ باہر نکلی۔ میں اچھل کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو یقیناً جیپ کے نیچے آ گیا ہوتا۔ میری نظر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اٹھی تو شہناز کو دیکھا۔ وہ اس وقت سرخ ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ چند قدم آگے جا کر جیپ رک گئی اور پھر ریورس میں میری طرف بڑھی۔ شہناز نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا۔ تم بہت جلدی واپس آ گئے۔ جیپ رکتے ہی شہناز مجھ سے بولی، آؤ بیٹھ جاؤ، میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ نہیں، میں دراصل تم سے کہنے کے لیے آیا تھا کہ جو مجھے کام تھا وہ ہو گیا، اب میں واپس علی پور جا رہا ہوں۔ تم بیٹھو تو صحیح جیپ میں۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ بس میں ہی دھکے کھانے کا شوق ہے تو میں تمہیں بس سٹینڈ پر چھوڑ دوں گی۔ مجبوراً مجھے جیپ میں سوار ہونا پڑا۔ میرے بیٹھتے اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس نے کوئی عمدہ قسم کی غیر ملکی خوشبو لگا رکھی تھی جو مجھے مسحور کیے ہوئے تھی۔ لاہور آ کر یہاں گھومے پھرے بغیر واپس جانا میرے نزدیک سراسر حماقت ہے۔ تم ایک نوجوان ہو، کیا تمہارے اندر کسی بوڑھے کی روح تو نہیں سرایت کر گئی؟ معلوم نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ تم جو چاہے کہو شہناز اور جو چاہے سمجھو، مگر میں آج ہی علی پور واپس جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور میں نہ جانے دوں تو؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ سرخ ساڑی میں واقعی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ میری جگہ کوئی اور نوجوان ہوتا تو شاید اس کے دام میں آ جاتا۔ عجیب زبردستی ہے بھائی، میں زیر لب کہنے لگا۔ تم مجھے کیوں نہیں جانے دو گی؟ بس میری مرضی، اور میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ پھر تمہیں کل میری بات کا جواب بھی تو دینا ہے۔ میں نے تمہیں کل ہی تک کی مہلت دی ہے نا؟ اگر میں آج اور اسی وقت اس کا جواب دے دوں تو مجھے علی پور جانے دو گی؟ زندگی بھر کا فیصلہ اتنی جلدی میں نہیں کیا جاتا، سمجھے تم؟ اگر ایسا کرو گے تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے مجھے نصیحت کی۔ پھر اس نے جو کہا تھا وہی کر دکھایا۔ مجھے اس نے علی پور واپس نہیں جانے دیا۔ پہلے اس نے شاپنگ میں خاصی دیر لگا دی، اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے ایک پکچر ہاؤس میں گھس گئی۔ وہاں ایک انگریزی فلم لگی ہوئی تھی۔ اشتہاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی اور فلم بھی تو دیکھ سکتی ہو۔ کیوں، کیا تم بچے ہو؟ وہ ٹکٹ ونڈو کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ آس پاس اور لوگ بھی موجود تھے، میں ان کی نظروں میں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ جب شہناز ٹکٹ لے رہی تو میں بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فلم کے پوسٹر سے میں نے اندازہ لگایا کہ فلم بطور خاص میڈیکل کے طلباء کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا موضوع تھا تخلیق آدم۔ شہناز نے باکس کا ٹکٹ لیا۔ میں بحالت مجبوری اس کے ساتھ باکس میں جا بیٹھا، جہاں میرے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ فلم میں کئی ایسے مناظر آئے کہ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔
मगर शहनाज पूरी दिलचस्पी से फिल्म देखती रही। मेरे नज़दीक इस फिल्म में एंजॉय करने को तो कुछ है नहीं, मुझे तो घिन आ रही है। बिलाखिर मैंने उकताकर कहा, तुम बोर कर रहे हो मुझे। अगर वाकई तुम्हें घिन आ रही है ज़िंदगी के हक़ाइक़ से तो ये बड़ी हैरत की बात है। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं फिल्म अधूरी छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने फ़ौरन कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम किसी पत्थर से कम नहीं हो, चलो उठो। वो गुस्से से उठते हुए बोली। मैं भी उसकी तकलीद में उठ खड़ा हुआ। पिक्चर हाउस के करीब ही एक अच्छा होटल था। शहनाज ने वहाँ जीप रोकी। उस होटल में खाना खाने के दौरान में मुझे जमीला से किया हुआ वादा याद आ गया कि मैं शहनाज की कोठी में रात नहीं गुजारूंगा। यही सोचकर मैंने उससे कहा, शहनाज मुझे मुगलपुरा छोड़ देना। वो किस खुशी में भाई? उसने तेवरियां डालकर कहा। मैं इस दौरान में बहाना सोच चुका था, सो फौरन बोला, मैंने गांव जाते हुए अपने एक दोस्त से वादा किया था कि अब लाहौर आया तो तुम्हारे ही घर ठहरूंगा। रात उसके घर गुजार लूँ तो वो खुश हो जाएगा और मेरा वादा भी वफा हो जाएगा। क्यों, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, दोस्त नहीं? और क्या तुम्हारे नज़दीक मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं? वो कदरे तंजिया लहजे में बोली। फिर उसने खुद ही फैसला सुना दिया। सुनो, मैंने तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त की खुशी के लिए नहीं रोका, तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करूं, मुझे उसकी ज़बरदस्ती पर गुस्सा आने लगा था, तो इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा फिरोज़। तुम ये रात फिर अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि हवालात में गुजारोगे। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। फिरोज़ के साथ लाहौर में शहनाज की मौजूदगी में क्या सलूक हुआ? क्या उसे अपने दुश्मन का पता चल सका? शहनाज से कैसे जान छुड़ाकर वो अलीपुर पहुंचा? ये सारे हालात जानने के लिए धुआं कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नीचे अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट की शक्ल में ज़रूर कीजिए। चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज मुस्तकबिल में भी लाई जा सके। शुक्रिया।